پاکستان سمیت مسلم دنیا میں لڑکیوں کی تعلیم بڑا چیلنج ہے۔ اس کے لیے آواز بلند کرنا ہوگی۔ لڑکیوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی سے ہی معاشرہ مضبوط اور ترقی یافتہ ہوگا۔ طالبات اپنی قابلیت سے بین الاقوامی معیشت میں بھرپور کردار ادا کر سکتی ہیں۔ لڑکیوں کو تعلیم نہ دینا ان کو روشن مستقبل کے حصول سے روکتا ہے۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں رابطہ عالم اسلامی اور حکومت پاکستان کے زیر اہتمام بین الاقوامی اسکول گرلز کانفرنس سے خطاب۔ پی ٹی آئی کمیٹی کی بانی سے ملاقات میری ذمہ داری نہیں، ایاز صادق نے ملاقات کے معاملے پر ہاتھ اٹھا لیے۔ کہا حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لے ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ 4 جنوری کو اسد قیصر کو بتا دیا تھا، ملاقات کا مطالبہ حکومت تک پہنچا دیا۔ فریقین کہیں گے 1-2 دن کے نوٹس پر اجلاس بلا لوں گا۔ اور مریم نواز اور خواجہ آصف کی کوشش ہے مذاکرات ناکام بنائیں۔ ان دونوں کی باتوں پر انتہائی افسوس ہے۔ اسد قیصر کہتے ہیں کہ کسی خوف میں مبتلا ہیں، نہ کسی سے ڈر رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی خاطر ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات پر اعتماد میں نہیں لیا، نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں صرف معاشی اشاریوں میں بہتری سے کام نہیں چلتا، جب تک روپے کی قدر میں بہتری نہیں آتی عام آدمی کو ریلیف نہیں ملے گا۔ حکومت کا مدت پوری کرنا نہ کرنا الگ بات، جائز ناجائز ہونا الگ بات ہے۔ مدتیں تو مارشل لاء بھی پوری کر لیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن صحیح ہوئے؟ خالد مقبول صدیقی میرے گھر مدارس ایکٹ سمجھنے آئے تھے، وہ وزیر تعلیم ضرور ہیں لیکن میرے گھر وہ زیر تعلیم ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا ڈیل کروں گا نہ ریلیف لوں گا، قانونی جنگ لڑوں گا۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں حالیہ الیکشن میں لوگوں نے ووٹ تحریک انصاف کو دیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا جواب، کہا بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی نہیں ہے۔ کیا ملک میں آگ لگانا کسی کا سیاسی حق ہے؟ اپوزیشن حالیہ الیکشن پر بات کرتی ہے، کیا ہمارا مینڈیٹ چوری نہیں کیا گیا تھا؟ وفاق سندھ کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلوک کرتا ہے، بلاول بھٹو کا اتحادی حکومت سے ناراضگی کا اظہار۔ تقریب سے خطاب میں کہا پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے۔ ہم انتہا پسندی اور انتقام کی سیاست نہیں کرنا چاہتے۔ بزنس کمیونٹی کا جتنا خیال صدر آصف علی زرداری نے رکھا سب کے سامنے ہے۔ مصطفیٰ کمال سے پوچھ لیں، کراچی کے لیے سب سے زیادہ فنڈز آصف علی زرداری نے دیے۔ کراچی میں پانی کا مسئلہ آج کا نہیں، قائم علی شاہ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اس شہر کے تمام مسائل کا حل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت نکالیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کے پہلے فیز کا افتتاح کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے نئے ایکسپریس وے پر خود گاڑی ڈرائیو کی، ٹول ٹیکس بھی ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی کے تاجروں سے ناراضی کا اظہار، کہا جہاں موقع ملتا ہے ہم پر الزامات لگائے جاتے ہیں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ تنقید کرنے سے خبر بنے گی، ایسا نہ کریں۔ ابھی ایک میٹنگ میں کہا گیا ہم 1.6 ارب ڈالر کھا گئے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے اس منصوبے پر 80 یا 90 ملین خرچ ہوئے ہیں، اس منصوبے پر کام چل رہا ہے۔ کراچی سے حیدرآباد موٹر وے جیسے بنایا گیا اس سے خوش نہیں۔ وفاق سے کہوں گا حیدرآباد سکھر موٹر وے کو جلد از جلد بنائے۔ نئے کینالز پر سندھ کے اعتراضات بے بنیاد قرار دینے کا احسن اقبال کا بیان مسترد کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے پوچھا کیا پنجاب کے پاس اضافی پانی ہے کہ چولستان کینال کو دے سکے؟ اتنا اضافی پانی نہیں ہے تو نئے کینالز پر پانی کہاں سے لایا جائے گا؟ خدشہ ہے سندھ کا پانی لے کر چولستان کینال اور دیگر نئے کینالز میں چھوڑا جائے گا۔ سندھ اپنے پانی کے حصے پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے نہیں دے گا۔ خیبر پختونخوا نالائکوں کے ہاتھ آ گیا، پی ٹی آئی حکومت صوبے کو بدامنی کی طرف لے جا رہی ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پارا چنار میں وفاقی حکومت کو مداخلت کرنا پڑے گی۔ ملک دشمن عناصر امن و امان تباہ کرنا چاہتے ہیں اور صوبائی حکومت کو کوئی پرواہ نہیں۔ وزیر اعلیٰ اجلاس میں آ کر کچھ اور باتیں کرتے ہیں، باہر کیسٹ بدل لیتے ہیں۔ ان کی ساری دلچسپی بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانے میں ہے۔ بانی پی ٹی آئی دھرنوں سے رہا نہیں ہوں گے۔ پاڑا چنار ٹل مین شاہراہ آج بھی آمد و رفت کے لیے بند۔ مندوری میں دھرنے اور راستوں کی بندش کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ کرم کے لیے امدادی سامان کا دوسرا قافلہ اب تک روانہ نہیں ہو سکا۔
पुलिस का कहना है मरकजी शहरा महफूज बनाने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया ने बताया रास्ते क्लियर होते ही काफिले रवाना किए जाएंगे। बगन मुतासरीन के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मजीद 7 इमदादी ट्रक भेज दिए। पहले काफिले में इमदादी सामान के 10 ट्रक भेजे गए हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। जनूबी अफ्रीका का दौरा करने वाली टीम में 7 तब्दीलियां, इब्रार अहमद, इमामुल हक और मोहम्मद हुरैरा की वापसी। मोहम्मद अली, काशिफ अली और रोहेल नजीर भी टीम में शामिल। आमिर जमाल, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और नसीम शाह को आराम दिया गया। पाकिस्तान गरीब मुल्क है। 60% लोगों की आमदन इतनी है कि टैक्स नेट में ही नहीं आते। 6,70,000 लोग इनकम टैक्स नेट में आते हैं। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल का तकरीब से खिताब। कहा टैक्स सिस्टम का डिजाइन 5% लोगों के लिए बनाया गया। सिस्टम कैसे ठीक करना है ये टीवी पर बताने वाले खुद टैक्स नहीं देते। जिससे टैक्स ज्यादा लेना चाहिए था नहीं ले पाए, इसलिए तनख्वाहदार तबके को शामिल किया। कानून ला रहे हैं टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों के लिए खरीदारी मुश्किल हो जाएगी। फितना इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद है। पहले सिविल नाफरमानी की कॉल दी जो मिस कॉल साबित हुई। दिसंबर में कॉल दी कि लोग पैसे ना भेजें, उसके बावजूद तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं जब ये इक़्तिदार में थे तो कहते थे NRO नहीं देंगे, आज खुद घुटनों के बल बैठकर NRO मांग रहे हैं। जब हुक्मों तावीज़ गंडों की हुकूमत थी तो तबाही ही तबाही थी। वज़ीर आज़म ने मुल्क को नई पहचान दी। बानी PTI ने जिन्ना हाउस हमले समेत 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ अपनाया। 9 मई को इस्लामाबाद में नैब तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। ATC ने हक़ाइक़ के बरक्स जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। करक अम्बीरी कला में ट्रेलर ने ब्रेक फेल होने के बायस गाड़ियों को रोन डाला। हादसे में 12 अफराद जाम बहक, 25 जख्मी हो गए। ट्रेलर पर रखा कंटेनर मुसाफिर कोच पर गिरा, कई गाड़ियां भी जद में आईं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हादसे में जाम बहक मुसाफिरों के लवाहिकीन से ताज़ियत, जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलतें फराहम करने की हिदायत। पंजाब में अपनी नौयत के पहले धीरानी प्रोग्राम का आगाज। वजीर आला मरीम नवाज के 50 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में शिरकत। सबको मुबारकबाद दी। कहा मेरे इतने सारे बेटे बेटियों की शादी है, आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। सोशल मीडिया पर वजीर आला पंजाब की जाली तस्वीर शेयर करने वाले 20 अकाउंट्स की निशानदही। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, दीगर को पकड़ने के लिए छापे। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई। एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी सरबराह मुकर्रर। FIA साइबर क्राइम सेल फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम शहरियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी गैर मुल्की के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। जैन मैरियट ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। सराय आलमगीर की नन्ही परी अगवा के बाद कत्ल। 5 रोज बाद भी पुलिस कातिलों का सुराग लगाने में नाकाम। लवाहिकीन और अहले इलाका सरापा एहतजाज। वालिदैन कहते हैं बच्ची ट्यूशन पढ़ने गई थी, 2 दिन बाद खून में लथपथ लाश घर के करीब हवेली से मिली। मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी। बलोचिस्तान के इलाके संजेदी में कोयले की कान में फंसे 8 मजदूरों की लाशें की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज 4 मजदूरों की लाशें निकाली गईं। PDMA के मुताबिक रेस्क्यू टीमों ने कान से 3600 फुट तक का मलबा निकालकर रास्ता क्लियर कर लिया। उम्मीद है कानकुनों तक जल्द पहुंच जाएंगे। चित्राल में 4 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, बिजली की फराहमी भी मुतासर है। लोगों की मुश्किलात बढ़ गई। सिंध में मौसम सरमा की पहली बारिश। मीरपुर खास और सांगड़ समेत कई शहरों में बादल बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात की आज लाहौर, कसूर, सियालकोट और नारोवाल में बारिश की पेशगोई।
कराची के लकी वन मॉल में ARY गोल्ड स्ट्रीट एक्सक्लूसिव ज्वेलरी एंड फैशन के आउटलेट का इफ्तिताह चेयरमैन हाजी जान मोहम्मद और हाजी मोहम्मद इकबाल ने इफ्तिताह किया। शहरी गोल्ड की खरीदारी पर 80% तक गोल्ड सेविंग कर सकते हैं। ARY गोल्ड स्ट्रीट एक्सक्लूसिव ज्वेलरी एंड फैशन ने 62 तलबा को अपना ब्रांड लॉन्च करने का मौका दिया। ARY बी ग्लोबल और यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। चेयरमैन ARY ग्रुप हाजी मोहम्मद इकबाल और यूनाइटेड इंटरनेशनल ग्रुप के डिप्टी MD शकील अहमद ने दस्तखत किए। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी के पॉलिसी होल्डर्स 80% से गोल्ड हासिल कर सकेंगे। BG प्रॉपर्टीज ने दुबई साउथ में नए हेड ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन मलिक रियाज हुसैन ने रिबन काट कर हेड ऑफिस का इफ्तिताह किया। हेड ऑफ ग्लोबल सेल्स शाहिद महमूद कुरैशी का कहना था दुबई की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। जहां पुरतायुश मकानात थे वहां अब राख और मलबे का ढेर है। लग्जरी गाड़ियां, खूबसूरत इमारतें, महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स सब मलियामेट हो गए। लॉस एंजलिस में हॉलीवुड सितारे और अरबपति अफराद सड़कों पर आ गए। हॉलीवुड के होटल्स पनाहगज़ीन कैंप में तब्दील। कैलिफोर्निया में बेघर अफराद के लिए इमदाद की अपीलें। 4 रोज में अमेरिका का महंगा तरीन शहर खंडर बन गया। हाइड्रेंट्स खुश्क होने लगे। माहिरीन कहते हैं दुनिया का कोई भी पानी का जखीरा इस आग पर काबू नहीं पा सकता। एक तरफ भड़कते शोले तो दूसरी जानिब बर्फानी तूफान। अमेरिका आग और बर्फ की लपेट में। जनूबी और वस्ती रियासतों में निजाम जिंदगी मंजमद हो गया। रास्ते और तालीमी इदारे बंद। परवाजें मुअत्तल। टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कनसास सबसे ज्यादा मुतासिर। तूफान की मजीद वार्निंग जारी। बरतानिया भी शदीद सर्दी की लपेट में। तालीमी इदारे बंद। बिजली की फराहमी मुअत्तल। एयरपोर्ट, रेलवेज और लोकल ट्रांसपोर्ट मुतासिर। स्कॉटलैंड में 150 मकामात पर सैलाब की वार्निंग जारी कर दी गई। इसराइल की गजा पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 21 फलस्तीनी शहीद। सियोनी फौज ने जैतून में मस्जिद को निशाना बनाया। रेमल में रिहायशी इमारत पर बम बरसाए। हमास के मुताबिक शिमाली गजा में इसराइली हमले के बाद मुतादिद गैरकमाली लापता हो गए। तल अबीब में इसराइली फौज के मेजर जनरल पर कदामत पसंद यहूदियों ने हमला कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज करने वाले 11 तलबा को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां। ICC के वफ्द का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। इंतजामात का जायजा लिया। वफ्द को मुख्तलिफ इंक्लोजर्स, मीडिया बॉक्स और ड्रेसिंग रूम्स का दौरा कराया गया। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन रवा माह मुकम्मल हो जाएगी। और इंशा जी को कूच के 47 बरस बीत गए। मुनफरिद असलों के शायर मज़ाह निगार इब्न इंशा की बरसी। इब्न इंशा ने सफरनामों, तराजुम और शायरी पर मुश्तमिल तसनीफ का वसी ज़ख़ीरा छोड़ा, जिनमें चांद नगर उर्दू की आखिरी किताब, चलते हो तो चैन को चलिए, दुनिया गोल है, काबिल ज़िक्र है।